Now we've got Conjarbin taking on Nilesh Chaudhary in the finals, and it's going to be an incredible fight. Both guys are coming to take each other's heads off and really prove that they're one of the best featherweight contenders in the country. ये फाइट बहुत स्पेशल है for many reasons, but I think the most obvious one is going to be the fact that it's the first ever championship fight in the history of Aturto. अप्रैल 2025 दिरांग डोमिनेंस। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी देश के टॉप 8 फेदरवेट से। इस फाइट केज में उतरे 8 फेदरवेट फाइटर्स बेल्ट के भूखे। खून बहा, सपने टूटे, पर उस केओस से निकले 4 फाइटर्स। 5 लाख रुपीस and our Aturto featherweight belt. Aturto 3.2 होगा. Coming back to Pasighat. Thank you. In Pasighat. Yep, in Pasighat. Adios. Pasighat, August Heat, the Farmyard Fury. And now coming up next, we've got the featherweight Grand Prix matchup that we've all been waiting for. Lakhan Laisharam taking on the one, the only Conjarbin. I don't know if you guys hear this at home, but the people here are losing their minds over Conjarbin. Yeah. Timing I'm talking about. Oh, that was nasty. Lakhan comes back with Lakhan fury. comes back as well. And charging. Oh, this is wild, like, for the first minute. Oh, another right hand, another 1-2. What timing by Conjarbin. And even now, the way he controls Lakhan's back. Ooh. Oh, he's looking to sink in that rear naked. He's looking to adjust the rear naked choke. Is this it? Oh, he sunk it off. Beautiful finish by Conjarbin. एक ऐसा सेमीफाइनल जिसने एमएमए की दुनिया हिला दी और एक स्कैंडल को जन्म दिया। नियत्सो अंगामी वर्सेस नीलेश चौधरी, जो सेमीफाइनल्स की एक सबसे एक्साइटिंग फाइट थी इन आतुरतो, वो अब कैंसिल हो चुकी है। अंशुल की अगर हम फाइट एक्सेप्ट कर ली थी हमने माइक ब्रीडन के अगेंस्ट इतने बड़े वेट मिस के साथ, देन इस वाली फाइट में क्या दिक्कत है जहाँ पे नीलेश इज ओनली गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस। दिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट ऑन द कार्ड ओनली बिकॉज नीलेश से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। नीत्सो ने कुछ ग्राम से अपना वेट मिस किया और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी। Make no mistake, it's not my fault, it's not my team's fault. There's nothing from our side. और नीत्सो अपना ये जो ग्रैंड प्री का वेट है उसमें नहीं आए, जो वेट में आना चाहिए था उसमें नहीं आए, वो उससे 400 ग्राम ज़्यादा था। अगर ये फाइट ग्रैंड प्री फाइट नहीं होता तो ये फाइट हो सकता था क्योंकि वो विद इन लिमिट था, लेकिन सिंस ये ग्रैंड प्री फाइट है यहाँ पे अलाउंस नहीं होता। ये तो अभी के लिए थोड़ा रोकना पड़ेगा, देखते हैं वो लोग गोइंग फॉरवर्ड क्या डिसीजन लेता है। नीलेश फाइनल्स पहुंच गया, पर आज भी फैंस के बीच में एक ही सवाल है, क्या होता अगर वो फाइट हुआ होता। फाइनल में पहुंच गया, ये फाइनल दिसंबर में होगा, ये फाइनल दिसंबर में। I'd like to call upon the stage Nilesh Chaudhary. वैसे तो देखो मुझे खुद को पता है कि भाई मैं फाइनल में सही तरीके से नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा खुद का प्लान नहीं था ऐसे आने का, ठीक है। बहुत बार चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है। हम आपको 1 नंबर शो देंगे ईटानगर में, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। We are the only place in the world where the guy who misses weight is praised and the guy who makes weight is villainized. I can't believe this actually happened. We made weight. We read the contract. Exactly what was said in the contract, we did. We executed. Did we need more clarity? Yes. And we asked. And we were also confused like everybody else. What is the weight allowance? 0.5 grams. Okay, noted. We'll do it. It was weird, but what was written is what we did. You're telling me the opposition has not made weight?
They've not made weight. They've got to make weight. That's all, as simple as that. They signed the contract. They read the contract. If they read it wrong, it's not my fault. It's not my fighter's fault. You read the contract wrong. So kind of please point the finger on yourself that you did not read the contract right. मैंने जितनी भी अभी तक की मेरी फाइट्स खेली पूरे करियर में, उनमें से सबसे अच्छी मेरी प्रिपरेशन नेत्सो वाली फाइट में थी कि भाई मैं ऑन पॉइंट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्टेमिना वाइज, कार्डियो वाइज, गेम प्लान, स्ट्रेटजी सब कुछ ऑन पॉइंट, एंड वो फाइट नहीं हुई तो मेरा दिमाग तो ख़राब हो, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे हाथ में कभी कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सारा गॉड का डिसाइड होता है प्लान, तो भगवान जैसा ले जाएंगे हमारी नाव वैसे हम चले जाएंगे। जब दूसरे लोग मुकाबले के दबाव में हार मान गए, वहीं दो खिलाड़ियों ने बाकियों से अलग अपनी पहचान बनाई। ब्रैकेट की एक तरफ अरुणाचल का गौरव बैठा है, कौन जार्बिन। ऑफ कोर्स हमें UFC फाइटर से, ONE FC फाइटर से तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, और सेम चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने ट्राई करते हैं बैक एट होम विद आवर टीम, और कोई ना कोई हमेशा बाहर होता है, तो ऐसा करके हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है एज अ फाइटर, प्रिपेयरिंग फॉर फाइट्स, ग्रेट फाइट्स। वो अपने घर की ज़मीन पर लड़ रहा है, भीड़ का शोर बहुत ज़्यादा होगा, उसे विश्वास है कि बेल्ट अपने स्टेट में ही रहनी चाहिए, और वो अपने लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहा है। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमको इतना पसंद करेगा, इतना प्यार मिलेगा, बट जितना जितना लड़ रहा है, जितना जितना हम अपना दिल दिखा रहा है, अपना स्किल्स दिखा रहा है, इतना इतना आदमी लोग हमको पसंद करने लग रहा है, तो इट्स वेरी हम्बल एक्सपीरियंस, और हम जो भी प्यार देता है उसको हम वापस देना चाहता है, और हम वो चैम्पियन बन के देगा, एक अच्छा फाइट देगा, और ये फाइट एज एन अरुणाचली मेरे लिए बहुत मीन करता है, क्योंकि हम ईटानगर में पैदा हुआ है, ईटानगर में बड़ा हुआ है, और अगर कोई एक छोटा जगह से होके भी वन ऑफ द बेस्ट बन सकते हैं इंडिया का, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड माय टीम। पिंजरे के बीच में उससे मिलने आ रहा है वो खलनायक, राजस्थान का फार्मर्स बॉय नीलेश चौधरी। उसके पास लगातार आगे बढ़ने का दबाव और दम घोटने वाली ग्रैपलिंग है। He just needs to keep. Oh, that's a tap. Beautiful. Absolute domination by Nilesh. High IQ, man. Beautiful Very high IQ. Beautiful work by Nilesh. There was nothing done out of. Wow. तो बढ़िया है, वहाँ पे होम टाउन में नहीं हूँ, who cares? मेरी सारी फाइटें बाहर ही होती हैं। मैं दिल्ली में, राजस्थान का हूँ, मुझे देहरादून में कोई नहीं जानता, दिल्ली में कोई नहीं जानता, इधर उधर जा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, पूरी दुनिया मेरी है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्ट्रेटजीज है जो तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है, अच्छा चल रहा है, हमको पता है भी वो अच्छा अपोनेंट है, तो हम ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग पे भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरऑल फाइटर है, एक्चुअल में वो पूरा MMA फाइटर ही है, ऐसा नहीं है वो केवल ग्रैपलर है, केवल स्ट्राइकर है। सो हम भी पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग पे भी, ग्राउंड पे भी। ये स्टाइल्स की क्लासिक लड़ाई है। स्नाइपर बनाम मॉलर, घरेलू हीरो बनाम खतरनाक हमलावर। No predictions here, but for the crowd and for people watching at home, it's going to be an explosive fight. Both these guys have again run the gamut of featherweight contenders that Atuto has to offer. It's a very evenly matched fight, to say the least, and it's going to be banging. We're going to see that there are levels to this, and the best man is going to be the best featherweight in the entire country, and that's something that I truly believe in. सिंपल है, फाइट एंजॉय करना है, बेल्ट लेके जानी है, चाहे 5 राउंड चाहे 2 राउंड जाए, चाहे 1 राउंड जाए। My plan is to enjoy the fight and take the belt home with me. He's gonna go in, he's gonna give it his 150%, whatever he has, he's gonna leave it in the cage, and he's gonna try to make it the most exciting fight that the fans have seen. I'm not expecting anybody except for myself in the finals. Yeah, जो भी आएगा, like I said in the round, line him up, knock him down. जो भी आने वाला था, I was going to knock him down. This guy soon smash everyone, you know, number 1 guy. 21 दिसंबर को बातें बंद हो जाएगी, टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और राज शुरू होगा। यह है अतुर्तो 3.3, द फर्स्ट चैंपियन। One title, one night, one match in none other than Aturto 3.3 December. Ladies and gentlemen, give it on for the fight contenders.